Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming examination like CSIR and SET examination. I hope you all are getting benefit from this series, and if you are getting benefit, do comment below. This will motivate me to make more such videos. So this is the next part of that series in which we will discuss some important questions regarding the cell biology. So stay tuned, and अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगते हैं, hit the like button and subscribe my channel for more such videos. Also, one more thing, I have provided 3 quiz questions and you all have answered it. So after this session, in the last part of the video, I will provide the answers of the yesterday 3 quiz questions. So stay tuned and don't miss the end part because it is very much important. वो तीनों question का मैं answer बताऊंगी. So stay tuned and do watch the video completely. Now the first question, which can be asked directly or through simple shuffling of the words, it can be asked, and this is direct from the reference book. So the question is, which of the following statement is correct? Select all that applies. It means it is a combination based question. More than one option is correct. So you have to find it that which option is correct or incorrect. So don't miss the explanation part because explanation में मैं सारे key points बताती हूँ, and all these key points are important to you because it can be used to solve the questions of the B section as well as for the C section. So the first option is Hooke, that is Robert Hooke, was first to observe living cells and introduce the word cell to describe them. No, this option is wrong because it was Leeuwenhoek who was the first to observe the unicellular organism in pond water. Therefore, this option is wrong. Although Hooke was the first to introduce the word cell after observing the dead cells in the cork. So ये option wrong क्यों है? क्योंकि Hooke first नहीं थे जिन्होंने cell observe किया था. It was Leeuwenhoek who observed the first time the cell, that is through the pond water, and जो सेकेंड पार्ट है इस ऑप्शन का वो करेक्ट है. जो नेम सेल दिया गया था वो रॉबर्ट हुक ने दिया था. सो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. नाउ बी ऑप्शन इज ब्राउन, स्क्लीडन एंड स्कॉन ऑल वर्किंग इंडिपेंडेंटली वर फर्स्ट टू प्रपोज द सेल थ्योरी. सो इसमें जो ब्राउन का नाम है वो नहीं आता है. जो स्क्लीडन एंड स्कॉन थे वो क्या कर रहे थे? दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली and they were the first to propose the cell theory. Brown जो थे, Brown ने क्या किया था? Robert Brown was first to observe the nucleus. इन्होंने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था. सेल थ्योरी जो था उसका क्रेडिट जाता है स्क्लीडन एंड स्कॉन को. इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है. नाउ थर्ड ऑप्शन वॉज रिमार्क वॉज फर्स्ट टू प्रपोज द टेनेट दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स. So this option is correct. It was the Remarque who was the first to note that all cells arise from other cells. So this finding was later published by Rudolf Virchow. इन्होंने पब्लिश किया था, लेकिन बताया किसने था? Remarque ने बताया था. So C option correct है. Now D is Leeuwenhoek was the first to observe unicellular organism in pond water. जो मैंने ए का एक्सप्लेनेशन दिया था वही डी का स्टेटमेंट है. सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताया है. आप खुद ही देख लीजिए कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन के कुछ स्टेटमेंट्स थे जो कि क्या कर रहे थे? आपको कंफ्यूज कर सकते थे एंड आपको पता होना चाहिए था. ये बहुत ही सिंपल है. यानी जो हम बेसिक बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं थ्रू द डिस्कवरी ऑफ सेल की पढ़ने से, या सेल में क्या क्या थ्योरीज हैं, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई, क्या क्या उसमें कंपार्टमेंट्स थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारा कुछ में ही एक क्वेश्चन बना दिया गया है जो कि एक 4 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है. सो प्रैक्टिस इट एंड डोंट स्किप इट कि ये ईजी है, ये नहीं आ सकता है. यही सारे क्वेश्चन सी सेक्शन में आते हैं जिसे हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग क्वेश्चन विच इज अबाउट डिफरेंट. दिस इज ए कॉलम एंड बी कॉलम. सो यू हैव टू मैच कि वोस एंड कोवर्कर ने क्या किया था, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, मिथेनोजेंस क्या होते हैं, एंड रेजिस्टेंस टू द डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड देयरफॉर टू प्लाज्मोलिसिस. ये किस टाइप के सोल्यूशन का क्वालिटी है? सो यू हैव टू मैच इट. सो डायरेक्टली इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं एंड उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे.
सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडेड इन ब्लू कलर. सो वोस एंड कोवर्कर ने क्या किया था, सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनटू 2 सेपरेट डोमेन्स. यानी जो वोस एंड उनके कोवर्कर्स थे उन्होंने ही बताया था कि प्रोकैरियोट्स को 2 कैटेगरीज में यानी 2 डोमेन्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्किया. सो आर्किया जो थे उसे क्या माना जाता है, दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स देन दी बैक्टीरिया. सो दे आर ऑनर्ड विद डिफरेंट अवार्ड्स एंड सो दिस क्रेडिट गोज टू वोस एंड देयर कोवर्कर. सो यहाँ से एक पॉइंट आपको बी सेक्शन में मिल सकता है कि डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था. सो इट इज दी वोस एंड देयर कोवर्कर्स. कार्ल वोस ने इसे किया था. नाउ राइबोजाइम्स आर व्हाट. सो राइबोजाइम्स आर द कैटालिटिक राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड मॉलिक्यूल्स. सो राइबोजाइम का ये होता है फंक्शन. मिथेनोजेंस क्या होते हैं, दे आर पॉसिबली द इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. मिथेनोजेंस को क्या माना जाता है, दे आर द इवोल्यूशनरी एंसेस्टर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस. सो ये जो टर्म है एंसेस्टर वाला, एक बहुत ही क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है वो है फेका. सो फेका स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर. फर्स्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर. एंड फेका जो है वो ये बताता है कि आर्किया एंड बैक्टीरिया जो है वो मिलके फेका बनाते हैं. यानी आर्किया एंड बैक्टीरिया को माना जाता है कि दे टुगेदर क्रिएट द फर्स्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर. एंड अब मिथेनोजेंस क्या है, मिथेनोजेंस एक आर्किया है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है. नाउ द फोर्थ ऑप्शन दैट इज रेजिस्टेंस टू द डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड अल्टीमेटली प्रिवेंशन ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज ड्यू टू द एक्सट्रीम हेलोफाइल कंडीशन. यानी एक्सट्रीम हेलोफाइल्स क्या करते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं किसको, डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन को, एंड देयरफॉर दे कैन रेजिस्ट द प्लाज्मोलिसिस ऑफ द सेल. सो इस टाइप के मैचिंग क्वेश्चन बी सेक्शन में आइदर सी सेक्शन में आ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ईजी क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द बी सेक्शन एंड ऑल्सो इट इज important for the set examination. So the question is, the overall shape of a bacterial cell is determined by which of the following? Cytoskeleton, cell wall, nucleoid, cell surface, membrane. So it is a very basic question and very easy one. So a cell shape of a bacteria can be determined through the cell wall. Cell wall के shape के according ही bacteria का shape बताया जा सकता है. So correct option is option B, that is cell wall. So third question which is you can see कि ये biochemistry का भी लगेगा या फिर सेल बायोलॉजी में भी ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहते हैं. दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन. सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाइज. इट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है. यानी कौन सा बायोमोलिक्यूल जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है. सो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल, यूजुअली विद द लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर. यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं थ्रू द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर. सो इनमें से जो पॉलीपेप्टाइड है एंड पॉलीसेकेराइड है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, दे ऑल आर बायोलॉजिकल पॉलीमर्स. यानी पॉलीमर्स हैं. अब पॉलीमर्स किससे डिराइव होते हैं, मोनोमर्स से बनते हैं. वो बहुत सारे मोनोमर्स लिंकअप होते हैं and they are formed by the condensation of different monomers. like polypeptides किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं. पॉलीसेकेराइड किससे बनते हैं, मोनोसेकेराइड से बनते हैं. एंड लाइकवाइज न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन डेफिनेटली आस्क्ड आइदर इन सेट और इन CSIR. So now next part of the previous question, that is condensation reaction can occur between which of the following pair of chemical functional groups. यानी इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, किन किन पॉलीमर्स में कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को मिलता है. और इसमें क्या बोला गया, इसमें पॉलीमर का नाम देने के बजाय उनके बीच का बॉन्डिंग दे दिया गया है. सो हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बन सकता है. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो इन सभी के बीच में क्या हो सकता है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव. यानी 4
ऑप्शंस जो दिए हैं उन सभी के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट और सेकंड जो अभी हमने सॉल्व किया उससे मैचिंग ही है। सो मैचिंग है, आपको मोनोमर्स बताना है जो कि मैंने अभी जस्ट बताया पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। सो यू हैव टू मैच द मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर कौन सा होता है? अमीनो एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड का क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड। पॉलीसेकेराइड का मोनोसेकेराइड। एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का क्या होगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज polypeptide is made up of, or the protein is made up of joining the amino acids. Ribonucleic acid is made up of ribonucleotides. Polysaccharide is made up of monosaccharide, and deoxyribonucleic acid is made up of deoxyribonucleotides. So this matching is definitely going to be asked in the B section. ये easy है इसलिए ये B section में आएगा 2 marks में. So you can remember it. Now next and the most important question जो कि मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करवाया था मैंने उस पे बेस्ड है, यानी जो हमने सॉल्व किया था यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक मैचिंग जो सॉल्व किया था कार्ल वोस और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था उस टाइम के सॉल्यूशन के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। सो फर्स्ट है क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वेदर देयर सेल्स हैव रिस्पेक्टिव प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर इज वैलिड बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर। ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है बिकॉज ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे करें तो ये बिल्कुल भी इनवैलिड है बिकॉज ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक बहुत ही पुअर टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। यानी कि अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं जैसे आर्किया बैक्टीरिया हैं तो आर्किया एंड बैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल हैं, लेकिन जो आर्किया है वो ज़्यादा रिजेंबल किससे करता है? यूकैरियोट से करता है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया। So on the basis of structure we cannot divide the organism because it is a poor taxonomic character. तो A option eliminate हो गया. Now B is the cell surface membrane of both archaea and bacteria contains similar type of lipid. This is also wrong because the major lipids of archaea are branched polyprenyl glycerol esters while those of bacteria are phosphoacyl glycerol. यानी कि बैक्टीरिया में क्या होता है? phosphoacyl glycerol होता है, लेकिन अगर आर्किया के लिपिड की बात करें so the membrane lipid of archaea consists of polyprenyl glycerol esters and therefore ये ऑप्शन गलत हो जाता है। C ऑप्शन है the molecular biology of archaea and eukarya show a greater proportion of similarity than those of eukarya and bacteria। ये मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो आर्किया है और यूकैरियोट्स है वो ज़्यादा मैच होते हैं एज कम्पेयर टू दी यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया और आर्किया एंड बैक्टीरिया। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। डी है द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर मोस्ट लाइकली हैड अ प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है वो मोस्ट प्रोबेबली डिड नॉट हैव अ न्यूक्लियस नॉर ऑर्गेनील्स। यानी कि जो सबसे पहले अर्थ पे आए यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें सो इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि वो क्या थे? प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल थे बिकॉज पहले के सेल में ना तो न्यूक्लियस था ना ऑर्गेनील्स था, तो इसीलिए उसे क्या कंसिडर किया जा सकता है? इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी एंड डी कैन बी डेफिनेटली आस्क्ड इन दी CSIR as well as SET examination. So this can be asked, so don't miss it and do practice it a lot. Now it's time for the answers of the previous quiz. So the first question was you have to match the food item along with the different processes. So the correct option was option 1. बहुत सारे लोगों ने इसका ऑप्शन करेक्ट दिया था। कैरेमलाइजेशन जो होता है वो शुगर्स का होता है एंड जो डीनेचुरेशन होता है एंजाइम का होता है एट वाइड रेंज ऑफ हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, लाइक अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर अगर pH ऑल्टर्ड है, एकदम एक्सट्रीम लो pH एंड एक्सट्रीम हाई pH एंजाइम को क्या करता है? डीनेचर कर देता है सो दैट इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। एंड ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन लिपिड्स का होता है यानी फैट्स का, इसीलिए बोला जाता है कि जो पैकेट फूड्स रहते हैं उसे नहीं खाना चाहिए बिकॉज उसमें क्या होता है? फैट एंड ऑयली कंटेंट ज़्यादा होता है एंड वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आने से। एंड ब्लीचिंग जो होता है, ब्लीचिंग इज इन दी पिगमेंट्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला जो कि बहुत लोगों ने इसका ऑप्शन इनकरेक्ट बताया था।
सो आप खुद देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आई हैव ऑल्सो पर्सनली रेफर्ड सो मेनी बुक्स, बिकॉज इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो जैसे कि आपको लग रहा है कि सारे ही सही हैं, वो एक बार अगर आप पढ़ेंगे, एकदम फास्टली रीड करेंगे और आंसर पिकआउट करने के पीछे रश करेंगे, सो आपको लगेगा सारे ही करेक्ट हैं। बिकॉज मुझे एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला जिसने क्वेश्चन 2 का आंसर करेक्ट दिया हो। सबने क्या बोला है, ऑल आर करेक्ट, या फिर बोला है BCDR करेक्ट, या फिर बोला है ACDR करेक्ट। सो ए को करेक्ट आप लोग क्यों बोल रहे हैं? ए तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्रांस एनाटॉमी जो होता है, इट इज सीन इन प्लांट्स, C4 प्लांट्स में देखा जाता है, नॉट इन कैम। ये C4 प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्रांस एनाटॉमी। एंड जो ये C वाला ऑप्शन था, मैलिट प्रोड्यूस इन C4 मेटाबॉलिक प्लांट इज टेम्पोररीली स्टोर्ड इन द वैक्यूल, नहीं, ये मेसोफिल सेल्स में बनता है एंड देन ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल शीथ सेल में। इसका ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर जो है वो कई लोगों ने दिया था। सो C भी इसका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। नाउ इसका करेक्ट ऑप्शन D था। D कई लोगों ने करेक्ट बोला था, ये बिल्कुल सही है। फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज दी क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। और ये जो B वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट्स फ्रॉम दी efficient catalytic properties of ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase, that is abbreviated as Rubisco, in being able to catalyze 2 different reaction। ये सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंड therefore this option is also wrong। मेन एंजाइम जरूर होता है Rubisco, that is responsible for the conversion of ROBP into 3-phosphoglyceric acid and 2-phosphoglycolic acid। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंड therefore इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सिर्फ D ऑप्शन था एंड नॉट ऑल ऑफ द अबव। सो खुद देखिए कि सिंपल स्टेटमेंट थे लेकिन कितने कंफ्यूजिंग थे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आ सकते हैं CSIR में। सो ये जितने भी सीरीज में प्रोवाइड कर रही हूँ, स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच ऑल द वीडियोज। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज इजी वन। जो C एनेमोन है दैट इज डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट, ये सिलेंट्रेटा का ऑर्गेनिज्म है। एंड जो ब्लू फ्लाई है, it has 3 pairs of joined leg, and starfish has tube fit because it is a echinodermata, and sponges are porifera, so sponges are rich in collar cell, यानी 4th का 3rd। so इसका ऑप्शन भी करेक्ट बताया था कई लोगों ने। so इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C। now I will provide in the comment section। सब लोगों ने तो तीनों आंसर करेक्ट नहीं दिया था, लेकिन बहुत लोगों ने 2 ऑप्शंस करेक्ट बताए थे। so जिसका पहले कमेंट आया है एंड जिसने एक्सप्लेनेशन दिया है, I will pick out them and I will provide it in the comment section। So this is all for today and thank you so much for watching।